we are back with another workshop, workshop number 6, which is polynomial regression. So actually I was facing some technical issues regarding Teams itself and some GitHub, and I don't know why my notebook is not being uploaded to GitHub. Even if I'm trying to force it to upload on GitHub, this is corrupting my file. So what I'm doing today, maybe this is a bug today GitHub is having. So, oh wow, it just worked. I tried so many times and it was not being worked here. So, never a problem. I am not on my laptop right now as well because my laptop also gave me a huge dhoka right now. तो उसकी वजह से मैं CPU पे हूँ. So, it doesn't matter. Okay, so just sharing this file with you guys on Teams so you can have it. All right, and just make it ready. And yeah, it's being published, so you will get it. All right, so sharing it as the coder subgroup as well, and and here. So now today's workshop is also very small, और कल की workshop भी बहुत छोटी होगी. कल की workshop भी ना इतनी lengthy होगी, ना आज की workshop इतनी lengthy होगी. The reason is because pretty good reason is because regression is never the difficult thing for industry. और मेरी recent analysis के मुताबिक usually just market use regression just for I guess 15%, 20% in their all AI scenarios. आया कि वो machine learning पे काम कर रहे हो, deep learning पे काम कर रहे हो, उनका regression का इतना इस्तेमाल नहीं होता. But regression is very important to understand because regression has some very complex mathematical intuitions. And once you are ready with regression, you can only understand the next level machine learning if you have strong intuition in regression. Okay, what is polynomial regression? Usually, many people have different concepts regarding polynomial regression. By the way, sorry for not showing my face right now because I'm not having webcam properly working to my system. So today I'm having so many difficulties, but never the problem. Commitment is commitment. I'm doing workshop. So some people say that polynomial regression is a form of linear regression, and some people say that polynomial regression is never the linear regression, that's non-linear regression. Okay, why people say these two different things? Is this polynomial regression is a dual nature regression? No. Why people have two different concepts regarding polynomial regression? The point is simple. If you have good knowledge in mathematics, so you already understand what's meant by polynomial. Polynomial means the degree, the higher degree. For example, अगर मैं उर्दू में इसको explain करूँ, so if in our equation we have highest value of degree is 1. How we know that? Because इस value के अंदर हमारे पास जो x की value है, x की power है वो 1 है. Same here, the highest power of x here is x square. That is why polynomial degree जो होगी वो 2 कहलाएगी. So if we are about to find any sort of polynomial degree, so हमें just independent variable की जो maximum degree जो होती है, अब there can be multiple x as well. There can be x1, there can be x square, there can be x cube, there can be x4, x power 5. So what is the higher degree if we are having x power 5? So it's obvious जितने मर्जी हो, but higher degree, higher polynomial degree is always the 5. So our polynomial degree will be 5 for that equation. So polynomial regression से क्या मुराद हुआ? There are some scenarios that of course that data is not going up to the linear. Of course ये एक simple point है कि अगर हम हमारा डेटा है जो ओके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो है, बट दैट्स नेवर द केस कि हमारा डेटा की कोई इक्वेशन ऐसी बन रही हो कि जिसका फॉर एग्जांपल आप सिंपल एक ऐसा ले लें कि दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो अगर x की वैल्यू स्क्वायर होती चली जाएगी तो आप सबको पता है दैट एक्स स्क्वायर इज गोइंग टू हैव अ पैराबोला. व्हाट इज पैराबोला? लेट मी शो यू ऑन द इंटरनेट ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर, and now you will be better understanding this. So this is the parabola. In this we are having curve. So now if we are having this sort of curve, linear regression won't be such suitable while fitting to this data set because linear regression में एक simple straight बिल्कुल एक line बन जाती है and that cannot be suited to this type of data set. If we are having polynomial features, so we will end up having a huge residual error or huge R square error
which can cause a model as unperfect. So that is why we use polynomial model or polynomial regression for high end accuracy or high the minimal lowest value of error in our regression model. Uh, Many people even use polynomial regression if even if their data is linear or their data is nearly like linear or in some out of linear, they still use polynomial regression because polynomial regression is no different than linear regression. जिस तरीके से multiple linear regression was same like linear regression, same as polynomial regression is same as or like linear regression. तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम एक सारी की सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं और कौन सी लाइब्रेरीज हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं ज़रा देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने लिख दिया अलजबरा। अब मैं यहाँ पे लिख इसलिए रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोग मुझसे बताने के बावजूद भी पूछ रहे होते हैं, सो दे मस्ट नो व्हाई वी इंपोर्ट दिस वैल्यूज। And by the way, sorry for the yesterday because of the internet, because I don't know why from last 2 days I am having problem on my internet, but I hope कि आज रात तक ये problem जो है ख़त्म हो जाएगी because we have some fiber workouts outside our area. Maybe that is the reason, and that is regression model, and that is our MSE. आज कल का टास्क मैंने आप लोगों को दिया था विजुअलाइजेशन का, अब पता नहीं कितने लोगों ने वो किया या कितने लोगों ने नहीं किया, लेकिन मैं आज उसका कोड शेयर कर दूंगा और मुझसे अगर हो सका सो आई विल जस्ट शेयर 5 minute वीडियो of visualizing multiple linear regression which we did yesterday, so then you can compare your visualization with my visualization as well. I'm too busy today, so I'll share this around 11 p.m. or 12 p.m. tonight. All right. So today I'm giving a task to perform mean squared error by yourself. I will drop the task on WhatsApp group and Discord server as well, so you can know that what task I have given you. That was actually a suggestion from one of your colleagues, from one of your fellows. Sorry. All right. So this is some pre-processing technique for polynomial features. All right, and here we are using function for splitting data set into chain and test sets. All right. So, and why we are using this? We will use it only when we are going to perform mean square error. So this is just a math library usually used for getting square, or we can just simply multiply both values. All right. So making sure that I have run this. All right. Yeah. So from where I'm getting this drugs performance.csv, I hope that one of my team member has already shared this sample in WhatsApp groups. I'm not sure about Discords. If it's not shared at Discord, so I'm gonna share it right now so you can play along with, you can observe the data and what type of data is it. All right, so I have shared the data on both of the channels and journal and in our AI group. Okay, let me see if you are okay with today. All right, it's getting blurred. Okay, I'll see that. Let me make it more zoom. Now I hope it will be clear to you. अगर वो क्लियर ना हो तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बता दिएगा that it's not clear. So I'll do some more things, try to make it clear, making it more zoom, because I'm having a very huge LED screen, so sometimes it's not properly viewable in laptops. That is why I'm making it zoom. All right, so we imported data set. I have already in my drive, so मैं अपनी drive से यहाँ से ले रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ. अच्छा मैं ड्राइव से नहीं ले रहा, मैंने जस्ट यहाँ सिंपली अपलोड कर रखी है और मैं जस्ट यहीं से अपनी डाटा फाइल ले रहा हूँ. आपकी मर्जी, आप ड्राइव पे डाल के ले रहे हैं या रैंडमली यहाँ पे डाल के टेम्परली डाटा फाइल ले सकते हैं. लेट मी रन दिस. सो आई एम गेटिंग वैल्यूज 0 to 4 और मैं देख सकता हूँ कि वैल्यूज ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही हैं. सो वैल्यूज आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एज सून एज एज इज बीइंग इंक्रीज्ड. अभी डाटा सेट किस चीज़ का है? टू अंडरस्टैंड दिस डाटा सेट, we can even view this data set on Microsoft Excel or Google Sheets,
and we can even just print 1 5 to just view 15 lines of this data set. And if we just write here dataset.unique, so unique is the function by pandas. It will tell you how many unique rows are there. All right, it's giving value because I have not selected a particular column. Let me select particular column age, and here I'm getting 1 to 84. So I'm having 84 values, or you can say these are basically 84 means by 1 to 84 are the values of that in that column. These are only unique values. If these values are being repeated, it will not show up here. To just find out the length, or all right, we just forgot one more thing. We can even try len for simplicity to find number of rows. All right, 84. So as you already know, we have just 84 values in that data set. अगर हम मज़ीद चलें इसको अगर हम देखना हो, सो ऑलरेडी नो कि CSV फाइल को हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से भी व्यू कर सकते हैं. Simply you just have to open this and you can see. Now what type of data set is this? ये data set जो है simply ये बता रहा है कि किस एज पे जो वो ड्रग है, जो प्री डिफाइंड ड्रग है, जस्ट सिंपल डेटा सेट. आई एम नॉट यूजिंग अ कॉम्प्लेक्स डेटा सेट राइट नाउ. ये ड्रग किस एज पे कितने ज़्यादा असर दे रही है. वैसे ये बहुत वियर्ड डेटा सेट मुझे लगा, बिकॉज वाई यूजुअली ड्रग्स लो एज पे ज़्यादा असर कर जाती है, बट आई डोंट नो वाई इट्स जस्ट सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब आप देखें कि 1 पे 1 था, 2 पे 1.8 हो गया, 3 पे 2.8 हो गया, 4 पे 4.1 हो गया. बट अगर हम जाएं तो 14 पे 35 है. मीन्स these values are not have a particular linear relationship. मतलब linear relationship है, but they are have some polynomial degree, जिसकी बिना पे एकदम वो बहुत तेजी से values multiply हो रही हैं. They are not being added or not simple multiplication. अदरवाइज 1 के ऊपर 2 आता, 2 के ऊपर 4 आ रहा होता, इस तरह का कुछ सिनेरियो बन रहा होता. बट नो, देयर इज सम काइंड ऑफ पॉलिनोमियल रिलेशनशिप इन बिटवीन दिस. हमेशा डेटा को अंडरस्टैंड करने के बाद आप ये अंदाजा लगाते हैं that if you have to use polynomial or linear regression, or what type of regression we have to use it. Just we have two columns, age and drugs performance. हम यहाँ क्या करेंगे, that we gonna pass age in our x and drugs performance in our y, because we have to predict drugs performance, not just age. Let me see if someone is having, okay, I have an issue. How can we get which regression model we will use on a data set, linear, multiple or polynomial? Yeah, good question. I have already told this. देखें, मैं उर्दू में इसको शेयर करता हूँ आप लोगों से. अगर आपके पास डेटा सेट बिल्कुल लीनियर रिलेशनशिप में हो, यहाँ पे मैं ज़रा आप लोगों को डेटा सेट की विजुलाइजेशन दिखा दूँ अपने. अब आप देखेंगे यहाँ पे हल्का सा कर्व है. ये मेरा डेटा सेट बहुत अच्छा वाला नहीं चूज़ किया, लेकिन सिंपल यही था आप लोगों को पढ़ाने के हिसाब से, तो फिलहाल यही सही है. हार्ड डेटा सेट्स थोड़ा आगे के लिए छोड़ दें, नहीं तो आगे क्या पढ़ाऊँगा. सो ये डेटा सेट बहुत सिंपल है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं that there is a curve. So when we have some sort of curve in a data set, it means that we have some polynomial, higher polynomial degree which is greater than 1. That is why we are using polynomial regression. If we were having multiple columns as we are having yesterday, अगर हमारे पास multiple independent variables थे, फिर चाहे वो polynomial हो या linear हो, तो हम multiple linear regression यूज करते हैं. अगर हमारे पास multiple columns हों जो कि पॉलिनोमियल भी हैं लेकिन मल्टीपल कॉलम भी हैं, तो हम लोग मल्टीपल पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज करते हैं. इसका फर्क कुछ नहीं है, बिकॉज ट्रेनिंग मॉडल में हमने जस्ट लीनियर रिग्रेशन यूज करना होता है. फंक्शन हमारा बिल्कुल वही है. दैट इज द व्हाई सम पीपल से दैट पॉलिनोमियल रिग्रेशन इज आल्सो द लीनियर रिग्रेशन, जबकि हालांकि अक्सर औकात बिल्कुल स्ट्रेट नहीं भी होती, बट स्टिल वी से लीनियर रिग्रेशन इज फॉर्म ऑफ लीनियर रिग्रेशन. पॉलिनोमियल रिग्रेशन का जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पर होता है, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे. ऑलराइट. सो अगर हमारे पास लीनियर रिग्रेशन होगा तो वहाँ पर डेटा बिल्कुल सेम होगा. अगर आपको ये भी अंडरस्टैंड करना हो, कभी आप भूल जाएं, तो सिंपली आप नेट पे जाया करें और यहाँ पे लिख दिया करें लीनियर रिग्रेशन. तो आपको उसी से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस स्टेप की विजुलाइजेशन आ रही है किस रिग्रेशन के ऊपर. अभी मैं यहाँ पे लिख दूंगा मल्टीपल
लीनियर रिग्रेशन, और सॉरी फॉर दैट ब्रैकेट। ओके, तो यहाँ पे दो हमारे पास बार आ रही हैं या तीन हमारे पास बार आ रही हैं, कुछ जगहों पे थोड़ा 3D एंगल भी बन रहा है। सो ये 3D पे जो बेस रिग्रेशन है ये हम बहुत जल्द इंशाल्लाह करेंगे। ये ये भी मल्टीपल रिग्रेशन से होती है, और अगर आप चाहें तो कैलकुलेट पे डाटा सेट फाइंड करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू इंक्रीज योर नॉलेज। एंड इफ वी जस्ट परफॉर्म पॉलिनोमियल, sorry, polynomial regression. So as you can see here, we are having a curve value. All right, we are having some sort of curve value. अब ये आपको यहाँ से मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास अंडरफिट हो रहा है मॉडल, यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फिट है। और ओवरफिट किसे कहते हैं? जब मॉडल ने वैल्यूज ही याद कर ली और बिल्कुल पॉइंट पॉइंट पे जा रहा है, सो इट मीन्स कि आपकी वैल्यू सही इस तरह स्ट्रांग नहीं है। डिग्री से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा डिग्री डाल देंगे तो उतने ज़्यादा मॉडल ओवरफिट हो जाएगा। और लाइट 1 डिग्री कभी भी मत डालिएगा। 1 डिग्री का मतलब ये है कि आपका जो मॉडल है, ऑल राइट, सॉरी फॉर दिस, ऑल राइट, सो मतलब आपका जो मॉडल है वो बहुत ज़्यादा या गेस मतलब स्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें फ़र्क क्या रहेगा, लीनियर रिग्रेशन भी सिंगल एक्स के ऊपर परफॉर्म कर रही होती है, तो 1 डिग्री कभी भी डाल ली, जो कि अभी हम आगे जाकर देखते हैं। ओके, जस्ट विजुअलाइजिंग अ डेटा सेट, हमने यहाँ पे अपना एक्स की वैल्यूज वाई की वैल्यूज डिराइव कर ली थी। और अगर आप देखें तो इसने पॉइंट्स में लिखा हुआ है, लेकिन इसने आगे यहाँ पे लिखा हुआ है e+01, जो कि इंडेक्स पावर है जो मल्टीप्लाई कर रहा है 10 से। बट दैट्स द अनदर केस, आपको मालूम भी होगा इसके बारे में। और let's just visualizing a data set. So as you can see, we are having curve in a data set. I'm repeating everything 3 to 4 times, so making sure that you are able to understand it clearly. Splitting a data set. All right, we have split a data set. आज हमने टेस्ट सेट 0.2 ही रखा है, that's enough. कुछ लोग 0.3 भी रखते हैं, so that's upon you. बहुत है इतना भी। All right, pre-processing polynomial features. नाउ पूरे आज की वर्कशॉप के अंदर सब यही 3 लाइंस इंपॉर्टेंट है, पूरी वर्कशॉप इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दीज 3 लाइंस, सो आपको पूरी की पूरी पॉलिनोमियल रिग्रेशन समझ में आ जाएगी। मैं चाहता तो मैं मल्टीपल रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन सेम डे करा देता, बट व्हाई आई एम गिविंग यू सम टाइम इन फर्स्ट वीक, बिकॉज अभी हमारा पहला हफ्ता है, आज 6th वर्कशॉप है। मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग 7th या 8th वर्कशॉप जितनी भी है वो आपको इतने अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, इतने अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि नेक्स्ट 20 डेज जब हम अपना घोड़ा भगाएंगे, जब वी गोना फास्ट, वी विल बी ऑन फास्ट ट्रैक, तो आपको मुश्किल ना हो ग्रैप्स करने के अंदर, आपको समझ में आ जाए कि मशीन लर्निंग की पाइपलाइन क्या है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर स्प्लिट करते हैं, फिर प्री प्रोसेस करते हैं, देन वी डू ट्रेन, देन वी विजुलाइज एंड देन वी प्रिडिक्ट। सो ये आप लोगों को फिर अच्छी उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ऑल राइट, सो नाउ वी आर यूजिंग दीज 3 लाइन्स। इन दीज 3 लाइन्स पे हम क्या कर रहे हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर यूजिंग दिस फंक्शन पॉलिनोमियल फीचर्स, एंड फ्रॉम वेयर वी गेट दिस फंक्शन, सो लेट मी शो यू कि हमने जब सबसे ऊपर लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी एसक्यूएल प्री प्रोसेसिंग से पॉलिनोमियल फीचर्स की, हमने यहाँ पे स्टैंडर्डाइज स्केलर यूज क्यों नहीं करा? बिकॉज वी आर नॉट हैविंग 2 वैल्यूज टू मेक इट स्टैंडर्डाइज, वो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसकी। अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज होती और फिर हम उसमें पॉलिनोमियल फीचर्स करें तो फिर हमें शायद दोनों ही इस्तेमाल करने पड़ते, स्टैंडर्ड स्केलर भी और पॉलिनोमियल फीचर्स भी, to so make their both data sets centralized और standardized to a same point. यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल फीचर्स को इंपोर्ट कराया, और पॉलिनोमियल फीचर्स क्या पैरामीटर्स हैं कि कोलैब आपको खुद भी बता रहा है कि आपको डिग्री पास करनी है। डिफ़ॉल्ट हमेशा 2 ही होती है, लेकिन अगर आप 1 पास करा रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो सिंपल इंटीग्रेशन मॉडल बन जाता है। आई होप यू आर नाउ ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस। यहाँ से आप सिंपली देखें, व्यू सोर्स पे भी जाएंगे तो व्यू सोर्स आ जाएगी। अब मुझे दिखा रहा है कोलैब। ऑलराइट, नेवर माइंड। सो ओके, पॉलिनोमियल फीचर्स क्या करता है, वो अपने हम जो पॉली के अंदर हम ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं कि हमारे पास हमारे डेटा के अंदर कितने फीचर्स हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक पैराबोला टाइप कर्व बन रहा है, हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, नहीं तो ये बिल्कुल उसी तरीके से बनता है जिस तरीके से हमारी एक्स वैल्यूज है। अगर हम देखें यहाँ पे ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से बन रहा है जिस तरह हमारा बन रहा था, लेकिन हमारे पास ये राइट हाफ है,
हमारे पास ये लेफ्ट हाफ नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग नेगेटिव वैल्यूज, और एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। दैट्स एन ऑब्वियस केस। तो दैट इज वाई वी आर हैविंग हाफ पैराबोला। और हम देख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर है। अगर हम चेक करें कि एक्स थ्री का ग्राफ कैसे होता है और उस पर डेटा किस तरह नजर आएगा, सो एज यू कैन सी दैट्स अ weird काइंड ऑफ ग्राफ। और अकॉर्डिंग टू आवर आई साइट्स, हम अपनी आंखों के मुताबिक ये विजुलाइज कर सकते हैं कि दिस डेटा सेट इज अलॉट डिफरेंट देन दिस काइंड ऑफ ग्राफ। ओके, हमारा डेटा सेट इससे दूर दूर तक मैच नहीं कर रहा। और अगर हम x4 तक जाएं तो शायद ये कहीं ना कहीं मैच कर जाए। लेकिन जब कोई चीज़ x2 से हो रही है तो हम उसको x4 से क्यों करें? बिकॉज अगर हम उसको x4 से करने जाएंगे तो हमारा मॉडल ओवरफिट होने के खदशात में जा सकता है। लेकिन ये x2 से भी हो जाएगा और x4 से भी हो जाएगा, बिकॉज सम काइंड ऑफ सेम रिलेशनशिप वी आर हैविंग इन बोथ टाइप ऑफ इंडेक्स पावर। अब आपने देखना ही होगा कि किसके अंदर सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी आ रही है या किसके अंदर कम एरर आ रहा है। हम वही डिग्री हम अपनी यूज़ करेंगे। अब इस डेटा सेट पे अगर हम डिग्री 1 लेके मतलब लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करते तो हमारा सेम सिंगल ऐसे क्या ग्राफ एक बार बन जाता, वो जिसके कर्व जो हमारे पास जितने आ रहे हैं वो रेजिडुअल्स हमारे बन जाते अच्छे खासे, और जिसकी वजह से हमारा मॉडल बहुत ज़्यादा इम्परफेक्ट बन जाता। हु नोज कि जो पैराबोला बन रहा है ये आगे जाके इस लीनियर लेटेंसी में ना रहे, ये और कर्व हो के आगे जाके परपेंडिकुलर फॉर्मेट में बन जाए, तो वहां पे तो रिग्रेशन पूरी फ्लॉप हो जाएगी अगर हम लीनियर अप्लाई करेंगे। सो दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड पॉलिनोमियल रिग्रेशन हियर। पॉलिनोमियल फीचर्स में हम डिग्री 2 डालते हुए मजीद आगे चलते हैं, और अब हम क्या करेंगे, जो डाटा हमारा एक्स ट्रेन का है जिस पे हमने अपना मॉडल ट्रेन करना है, उसको हम मजीद प्री प्रोसेस्ड कर देंगे, उसको मजीद ट्रांसफॉर्म कर देंगे हम किसके मुताबिक, अपने इस पॉलिनोमियल फंक्शन फीचर्स के मुताबिक। ठीक है, ताकि जब लीनियर रिग्रेशन के पास ये डाटा जाएगा वो इस तरह स्केल अप होकर जाएगा कि जब लीनियर रिग्रेशन उसमें परफॉर्म हो तो बेसिकली वो पॉलिनोमियल रिग्रेशन ही परफॉर्म हो रही होगी। Alright, so we are transforming this poly dot fit transform on x poly। सारा का सारा डाटा प्री प्रोसेस्ड होके या प्रोसेस्ड कह लें, प्रोसेसिंग होके x poly वेरिएबल के अंदर आ रहा है। देन वी आर फिटिंग poly। poly वाज लाइक आवर मॉडल, जिस तरीके से हमारा लीनियर रिग्रेशन का मॉडल होता है, poly इज आवर प्री प्रोसेसिंग मॉडल। और इसमें हम लोग क्या फिट कर रहे हैं, X poly and Y train. Why we are not mentioning the X train, because X poly ही हमारा polynomial features के accordingly transform data है। X train हमारा polynomial features के accordingly transform data नहीं है, जो कि model clearly understand कर सकेगा। So we are fitting this data. Now what we are gonna do? Uh, let me see here. Let me see it. Okay, we have to run this. I'm not sure if I have run this. Let me run this as first. Yeah. Now I'm running this. अभी हमें बता रहा है कि yes, इसने बायस इंक्लूड किए, एंड बायस बेसिकली नॉट अ बैड थिंग। बायस सब चीज़ों में ही होता है। दिस इज वार्निंग मी दैट आई एम हैविंग अ पुअर इंटरनेट कनेक्शन। Guys, let me know if my quality is absolutely clear or if there is anything blurred. So, all right. I hope it's all cleared. So now I'm training the model. अब यहाँ पे हमने linear regression ही लिखा हुआ है, but what we are seeing here, again I'm receiving this message, bad network quality. I don't know why, man. This should not be happen. All right, that's removed. Okay, training the model, model linear regression, X poly and Y train. Now we are fitting a linear regression model on X poly and Y train. Why on X poly and Y train? Because हमारा का डेटा जो है वो X poly का जो डेटा है हमारा वो polynomial features के accordingly प्री प्रोसेस्ड हो चुका है। इफ इन ड्यू टू केस अगर मेरी आवाज़ कट जाए तो सो प्लीज़ कमेंट मी, मैं हर 5 मिनट बाद कमेंट्स देखता रहूँगा। सो इट विल हेल्प मी टू फिगर आउट कि मैं कितना आपको डिलीवर कर पा रहा हूँ। दैट इज़ वाई वी हैव यूज्ड हियर एक्स पॉली एंड वाई ट्रेन। वाई ट्रेन हमारे पास वो डेटा सेट था जो हमने ऑलरेडी ट्रेन करने के लिए देना था, और एक्स पॉली हमारे पास वो फ्यूचर बेस्ड डेटा सेट था एक्स का, जिसके अंदर हमारे पास पॉलिनोमियल फीचर्स थे जिसको हमने प्रोसेस किया है कि वो लीनियर रिग्रेशन में जाके प्रॉपरली ट्रेन हो जाए। तो अब हमने मॉडल में लीनियर रिग्रेशन ले लिया और यहाँ पे मॉडल डॉट फिट
एक्स पॉली कोमा वाई ट्वेन करके इसको फिट कर दिया है। एक दफ़ा फिर चला लेते हैं, कोई मसला नहीं होगा इससे। एंड नाउ लेट अस विजुलाइज दिस। विजुलाइजिंग बहुत सिंपल है। आई होप आप लोग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की विजुलाइजिंग कर चुके हो। दैट विल बी ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू गाइस। अदरवाइज मैं आज एक वीडियो सेंड कर दूंगा, सो लेट यू नो। Now here I'm saying plt.scatter. Scatter क्यों लिख रहा हूँ मैं? Because हमारे पास कोई straight नहीं है, हमारे सब ग्राफ पे प्लॉट्स करने that where we are having our data set points. तो यहाँ पे हमने x मैंने शिफ्ट पास कर दिया, हमने यहाँ y पास कर दिया। If I am not wrong, ये y I don't know capital था small था, लेकिन अब ये ऊपर जाकर देखना पड़ेगा, but leave it small here. And color मैंने वही orange पास कर दिया, so make it difference from the other plot. और उसी फिगर के ऊपर मैं इसको शो करने से पहले plt डॉट प्लॉट कर रहा हूँ। एंड व्हाट इज दैट डूइंग कि उसी फिगर के ऊपर, डेटा सेट के ऊपर वो लीनियर रिग्रेशन का मॉडल शो करेगा कि हाउ परफेक्ट इज अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा x डाल दिया है, और यहाँ पे मैंने मॉडल डॉट प्रिडिक्ट के अंदर भी x डाल दिया है। Now you guys have some questions regarding me that why I'm writing this poly.fit transform and x inside that function or x inside that method of poly. Why? Because अगर हम x डायरेक्ट मॉडल ऑफ प्रेडिक्ट में डाल देंगे तो दोनों की डायमेंशनल फीचर्स डिफरेंट होंगे। दैट इज वाई वी, क्योंकि हम ऊपर जो मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं डाटा, उसको हम जो हायर डिग्री थी हमारे पास उसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि हमारा लीनियर रिग्रेशन का मॉडल जो है उसको अंडरस्टैंड कर सके। दैट इज वाई जब हम प्रेडिक्शन दे रहे होंगे तो उसको इसी तरीके से हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। कल आई डोंट नो yesterday और it was a day more than yesterday, I don't know, day before yesterday, I don't know, but someone asked me this very good question that how we gonna input our images if machine learning model never accepts images directly. तो मैंने को वही कहा था, जिस टेक्निक से आप इमेजेस को न्यूमेरिकल डेटा में ब्रेक डाउन कर रहे होते हो टू ट्रेन योर मॉडल, उसी टेक्निक से आपको इमेज को न्यूमेरिकल डेटा में ब्रेक डाउन करना पड़ता है प्रिडिक्शन के अंदर। जस्ट इमेजिन हाउ फास्ट और कंप्यूटेशन पावर ऑफ डेटा सेंटर्स आर कि जब हम या फिर आप सिंपल एक फेशियल रिकग्निशन सिस्टम में लें जो आप बहुत सारों के मोबाइल में एज अ सिक्योरिटी फीचर होता है। That first we save the samples of our face, and the next time whenever we try to unlock our smartphone just by our face, वो हमारे पहले फेस को डाटा को लेता है, उन तमाम पिक्सल्स को रिड्यूस करके या किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में ब्लैक स्केल कर रहा होता है, फिर उसको न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट कर रहा होता है, और न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करने के बाद उससे मालूम कर रहा होता है कि कितनी % एक्यूरेट रिजल्ट हैं मेरे पिछले रिजल्ट से। उसके बाद वो आपको बताता है कि भाई हाँ, उसके बाद आपको पता चलता है कि वो चेहरा सही था या सही नहीं था। Then it unlocks the device for you, or if you are not the same person, it will never unlock the device for you. कुछ मॉडल्स इतना ज़्यादा ओवरफिट होते हैं मोबाइल फोन्स के अंदर, जिसके ऊपर आपने देखा होगा कि फन बन रहा होता है। Why? Because if you do some makeup on your face, especially girls, if you just getting a bird after 1 week and you just try to unlock your phone with your face, सो इट वॉन्ट रिकॉग्नाइज यू, बिकॉज वो मॉडल इतने ओवरफिट होते हैं कि भाई जब तक उसको 99% वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, दिस दैट नेवर गोइंग टू बी ओपन फॉर यू। लेकिन अब इतने मॉडल जनरलाइज हो गए हैं दैट ओवर टाइम दे लर्न फ्रॉम योर फेस। फॉर एग्जांपल iPhone X व्हेन वाज अनवील्ड, सो उसका फेशियल रिकग्निशन सिस्टम स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है, लेकिन आफ्टर ओवर टाइम वो इतना ज़्यादा अच्छा हो चुका होता है, इतना ज़्यादा जनरलाइज हो चुका होता है, बिकॉज रोज आपके चेहरे को देख के आपके चेहरे का डेटा स्टोर कर रहा होता है, एंड इट्स कीप जनरलाइजिंग इट्स डेटा, ताकि जब जब आप किसी भी लाइटिंग कंडीशन में अपना आप को अनलॉक करने लगें, सो वो आपको अनलॉक फौरन कर दे। तो सेम हेयर वी आर यूजिंग poly.fit transform just to redefine our inputting data for our model, ताकि हम इसको प्रिडिक्ट कर सकें। मैंने बहुत लंबी तवील इसकी अपना भाषण दिया, अपनी डेफिनेशन दी है, सो लेट यू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स सी कि इसको शो कर देते हैं। इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू शो दिस, ताकि वो पुराने उसमें से क्लियर भी हो जाए। Alright, so here we are having an error that we accidentally put dot here. Alright, और oh wow, so as you can see here कि हमारा रिग्रेशन मॉडल यूजुअली बहुत स्ट्रेट बनता है, लेकिन अभी हमारे पास डाटा सेट बहुत सारा था, इसकी वजह से हम नहीं बता सकते
कि हमारा मॉडल ओवरफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप देखें तो इतनी स्मूथ लीनियर लेटेंसी के साथ ये जो डाटा हमारा ऊपर जा रहा था विद द कर्व, हमारा रिग्रेशन का मॉडल भी इतनी स्मूथ पॉलिनोमियल लेटेंसी के साथ ऊपर जा रहा है, बिल्कुल उसी डाटा के ऊपर साफ साफ। अब हमारे पास ऊपर नीचे कोई इस दफ़ा आउटलायर्स नहीं है, तो हमें ये मालूम नहीं हो रहा कि हमारा जो पॉलिनोमियल फीचर है वो डिस्टर्ब हो रहा है नहीं हो रहा, बिकॉज इट्स ऑलरेडी वेरी प्री प्रोसेस्ड डाटा सेट। इंटरनेट पे पॉलिनोमियल फीचर्स के मुझे काफ़ी रॉ डाटा नहीं मिल रहा था, जो डाटा सेट मुझे मिल रहा था वो मुझे प्री प्रोसेस्ड ही मिल रहा था कैगल के ऊपर। सो इट्स अ गुड थिंग फॉर यू गाइस एज वेल कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, आपको स्केलिंग रोबस्ट स्केलिंग यूज़ नहीं करनी पड़ रही टू रिमूव दोस्त काइंड ऑफ आउटलायर्स। आपने सिंपली इसके अंदर डाल दिया डाटा सेट और यू परफॉर्म पॉलिनोमियल रिग्रेशन। हम यहाँ पे अगर प्रिडिक्शन पे जाएं तो हम यहाँ पे सिंपली ये कमांड रन कर रहे हैं। हम इवन के प्रिडिक्शन जिस तरह हमने ऊपर पॉली डॉट फिट ट्रांसफॉर्म लिखा था एंड वी आर कंपेयरिंग टू द इंटायर एक्स, सेम फॉर द प्रिडिक्शन इफ वी डू इट फॉर एक्स टेस्ट, तो यहाँ पे हमें वही टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर हम डायरेक्ट एक्स टेस्ट डालते हैं तो हमारे पास सम डायमेंशनल एरर्स आ जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं, लेट मी शो यू। और अगर नहीं आए आ गए, सो इनपुट ऑफ फ्रेंड वन हैज अ मिसमैच इन इट्स कोड डायमेंशन 0 विद एक्स वाई जी, ऑलराइट। तो ये इसकी अपनी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो मैच नहीं कर पा रहा डाटा, दैट इज़ वाई वी हैव राइट दिस वैल्यूज़, राइट। एंड आई होप नाउ दिस विल रन परफेक्टली। अगर आपको मालूम करना हो कि एक्यूरेसी कितनी अच्छी है तो आप जो सिंपली वही वाला कल वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इससे इतना खास मालूम नहीं होता। मालूम होता आर स्क्वायर से, जो कि हम अक्सर पढ़ते आ रहे थे। आर स्क्वायर और मीन स्क्वायर्ड एरर आज आप लोगों का टास्क है, कल का टास्क आपका था डाटा विजुअलाइजेशन। इससे कोई आपकी सर्टिफिकेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, आप नहीं करें, दैट्स नेवर द केस, but this will help you to get sufficient in your machine learning, because अगर आप भूल जाएंगे कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है तो फिर सारा मैं ही बता दूंगा तो फिर आपका अपना दिमाग नहीं चलेगा। दैट इज़ माई ट्रिक ऑफ एक्सप्लेनिंग पीपल। कल डेटा विजुलाइजेशन की आप ट्राई करें और आज में आप सिंपली मीन स्क्वायर्ड एरर ट्राई करें। मीन स्क्वायर्ड एरर इज़ नॉट डिफरेंट, सेम कोड विल बी यूज्ड। कोड भी मैं दिखा देता हूँ वापसी आप लोगों को कि कोड कौन सा होगा। अगर आप गिटअप पे जाएं, मेरी फर्स्ट सिंपल इंटीग्रेशन पे जाएं और यहाँ से इधर आएँ और फिर थोड़ा सा इंतज़ार करें और फिर अगर आप नीचे आएँ, क्योंकि सिंपल इंटीग्रेशन में सब समझा चुका था, तो अगर आप नीचे आएँ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी सारा का सारा कोड। आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो शायद वहाँ पे आपके पास एरर्स आए, तो फिर आपको मेरी वो चीज़ याद रखनी पड़ेगी पॉली डॉट फिट वाली, कि वो चीज़ कहाँ यूज़ करनी है और कहाँ यूज़ नहीं करनी। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होंगी। मैं क्यों एन ओपन कर देता हूँ। सो इफ़ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा यार बहुत जल्दी जल्दी वर्कशॉप्स खत्म हो रही हैं, सो आई एम गिविंग यू सम टाइम्स कि आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस, मैंने डिज़ाइन ही इस तरीके से किया है इस आउटलाइन को कि स्टार्टिंग 7 और 8 डेज आपके लिए ऐसे होंगे कि आप जस्ट प्लेट में रख के आपको मिल रहा है और आप सब कर रहे हैं। तो लेकिन आखिरी जो इसके बाद वर्कशॉप्स आएंगी फिर उसमें आपके पास टफ टाइम होगा, और वो सिर्फ वही लोग कर सकेंगे जो एक्चुअली यहाँ पे पढ़ने आए, जो सिर्फ सर्टिफिकेट लेने नहीं आए। और मैं वही चाहता हूँ कि सिर्फ वही लोग हों जो एक्चुअली पढ़ना चाह रहे हैं, बिकॉज हम लोग दूसरे उन लोगों की तरह नहीं है जो यूट्यूब पे कोर्सेज करा रहे होते हैं। हम उन लोगों की तरह हैं जो एक्चुअली आपको क्वालिटी लर्निंग डिलीवर कर रहे हैं। ऑल राइट, इफ़ यू आर हैविंग फर्दर क्वेश्चंस यू कैन आस्क। Okay, what does degree is equal to 2 mean? I guess you are pretty late. That is why you are asking this. मैं ये फिर समझा देता हूँ and good. Everyone should have asked me this question. Okay, why we are using degree 2? जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि जब हमारे पास लीनियर रिग्रेशन होती है, सिंपल स्ट्रेट लीनियर रिग्रेशन, तो उसके अंदर हमारे पास डिग्री 1 होती है। अब डिग्री 1 और डिग्री 2, डिग्री 3, व्हाट इज दीज? अगर हम यहाँ पे चाहें इक्वेशन देखें दोनों की, सिंपल लीनियर मॉडल की और पॉलिनोमियल मॉडल की, ये इसकी इक्वेशन है और ये इसकी इक्वेशन है। व्हाट इज बी नॉट? बी नॉट इज अ बायस एंड व्हाट इज बी वन? बी वन इज अ वेट। हम बायस और वेट के बारे में डीप लर्निंग में ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आप लोग अपनी पर्सनल स्टडी करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके लिए बहुत ओवर हो जाएगा। तो अगर हम लेमन टर्म्स में जाएं तो बी नॉट इज लाइक अ कांस्टेंट और न्यूमेरिकल कांस्टेंट जो भी है, और बी वन इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स।
लेकिन दोनों के अंदर हमारे पास एक एक्स वैल्यू ऐसी जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर है। इट डजेंट मैटर कि हमारे पास एक्स कितने हैं, मैटर क्या करता है पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर कि हमारे पास हायर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, या यूं कह लें कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स पावर, कि कौन सा मैक्सिमम हमारे पास, कितनी मैक्सिमम पावर का हमारे पास एक्स मौजूद है। हमारे पास यहाँ पे लाइक एक्स स्क्वायर मौजूद है और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक्स की पावर 1 मौजूद है। सो एक्स स्क्वायर, सो 2 विल बी अ डिग्री, polynomial degree. If we are having any type of equation like y is equal to x की power 5 plus 4x for x cube, so it doesn't matter कि coefficient क्या है उसका, matter क्या करता है कि उसकी power क्या है। We will not see x cube, we will see only x5। तो हमारी उस equation की polynomial value 5 हो जाएगी। ठीक है, हो गया। अब हमें कैसे मालूम हुआ कि इधर हमें डिग्री 2 यूज करनी है। डाटा बहुत सारा है ये। ऑलराइट, हमें ऑलराइट कहाँ गया, हमें कहाँ लिखा हुआ था, यहाँ पे हमें कैसे मालूम हुआ कि हमें यहाँ पे डिग्री 2 यूज करनी है। सो दैट्स अ सिंपल थिंग। ऑलराइट, यहाँ पे मुझे मालूम नहीं हो रहा कि मेरी क्वालिटी किस तरह चल रही है। ओके, ऑलराइट, अब आ गया है। सो वाई वी आर यूजिंग डिग्री 2 हेयर, बिकॉज अगर हम अपने डेटा सेट को देखें तो हमारा डेटा सेट में पैराबोला बन रहा है। और अगर आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी हो तो पैराबोला यूजुअली एक्स स्क्वायर की वैल्यू में बनता है। अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर पे जाएं, यस, सो वी आर हैविंग लाइक हाफ पैराबोला, बिकॉज हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यूज ही नहीं है, तो हमारे पास दिस साइड ऑफ पैराबोला नहीं बन सकता, हमारे पास सिर्फ इस साइड ऑफ पैराबोला ही बन सकता है। सो दैट इज व्हाई वी आर हैविंग पैराबोला फॉर्मेट। और अगर हम एक्स क्यूब पे जाएं, हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट ग्राफ बन रहा है जो कि बहुत वियर्ड है। अगर हम x4 पे जाएं तो हमारे पास बिल्कुल थोड़ा उस टाइप का ग्राफ बन रहा है और वो उस पर फिट भी हो जाएगा काफ़ी हद तक, लेकिन हमारा मॉडल ओवर फिट हो जाएगा, वो उसको एक बहुत मतलब पॉइंट टू पॉइंट चला जाएगा और वो उसको बहुत ज़्यादा ओवर फिट कर देगा। जब कोई काम एक्स स्क्वायर से हो रहा है तो उस काम को एक्स फोर से करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आपकी वैल्यूज़ कम होंगी उतनी ज़्यादा ही आपकी जो है बायस लो होगा, और so many things are involved in this factor. All right, so I hope I have make you understand and my words just make some sense why we are using here degree 2. Okay, another question was, please repeat, when do we have to use polydot fit? All right, polydot fit हमें तभी यूज करना पड़ता है, बेसिकली polydot fit ट्रांसफॉर्म है पूरा फंक्शन, and we only have to use it when we have to pass our data which is having some polynomial features। कहाँ करी हमने प्री प्रोसेसिंग। ऑलराइट, तो यहाँ हमने प्री प्रोसेसिंग की हुई है और यहाँ हमने पॉली डॉट फिट ट्रांसफॉर्म किया हुआ है और उसके बाद हमने पॉली डॉट फिट भी किया हुआ है। इसके बारे में आपको ज़रूर बता देता हूँ, इसके बारे में आप बिल्कुल टेंशन मत लें। यहाँ पे हम कर रहे हैं एक्स पॉली इज इक्वल टू पॉली डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। हम अपने एक्स के डाटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इस हिसाब से कि लीनियर मॉडल जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। ऑलराइट, कि लीनियर रिग्रेशन जो होगा अंडरस्टैंड कर सके तो मेरे पास जो डाटा आ रहा है वो पॉलीनोमियल फीचर्स के साथ आ रहा है, लेकिन उसने अपने आप को इस तरीके से ऑप्टिमाइज कर दिया कि मैं उसको फिट कर सकूं, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करेगा पॉलीनोमियल फीचर्स को अगर आप डायरेक्टली ही उसमें पास कर देते हैं। फिर हम अपने यहाँ पे डाटा को पॉलीडॉट फिट लिख के लिख रहे हैं एक्स पॉली कोमा वाई ट्रेन। अब हमारे पास यहाँ पे एक्स ट्रेन हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें पॉलीडॉट फिट के अंदर एक्स ट्रांसफॉर्म डेटा पास करना था। तो अभी हमें जब पास कर दिया तो अब हमें ये कंफर्म कर रहा है यस वी आर हैविंग 2 डिग्रीज। हमारा डाटा ये एक इस तरह का स्केलर डाटा, लेकिन ये हमें कंफर्म कर रहा है कि हाँ हमारे पास 2 डिग्रीज हैं, हमारे पास बायस भी मौजूद है, मतलब बी नोट की वैल्यू भी है, हमारे पास इंटरेक्शन ओनली बिल्कुल फॉल्स है, दैट्स अनदर टाइप ऑफ मैथ्स, उसको छोड़ दें, और ऑर्डर हमारी सी आ रही है उसको भी छोड़ दें। हमारे लेवल की मैथ्स पर अगर हम बात करें मशीन लर्निंग की लेवल की, तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कितनी डिग्रीज उसको मिल रहे हैं आफ्टर ट्रेनिंग। तो हाँ, आफ्टर ट्रेनिंग उसको 2 डिग्रीज मिल रहे हैं और हमें अपने डेटा सेट को अपने लीनियर रिग्रेशन में ट्रेन करने के हिसाब से ट्रेन कर दिया है। नाउ व्हाट वी विल डू, जस्ट सिंपली इंपोर्ट फंक्शन ऑफ लीनियर रिग्रेशन इनटू आवर मॉडल, और उसको फिर हम एक्स पॉली और वाई ट्रेन को डायरेक्टली लीनियर रिग्रेशन के मॉडल में फिट कर देंगे। फिट करने के बाद हम मॉडल डॉट प्रिडिक्ट कर रहे होंगे, and then we're gonna perform so many things here. I hope I have make some sense again.
if I am unable to make you understand, so let me know again. यहाँ पॉली डॉट फिट ट्रांसफॉर्म इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज जब हम मॉडल में ट्रेन करने के लिए किसी डाटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं तो इनपुट के लिए भी हमें अगेन ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है. All right, another questions. Prediction by the model 876 आउटपुट वैल्यू किस चीज की है? All right. 876 तो यहाँ पे मेरे पास कहीं पे भी नहीं लिखा. अच्छा ये लिखा. ऑल राइट. ये हमारे पास किस चीज की आउटपुट वैल्यू है? 3 दिन से हम ये रिग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं और आई होप यू मैनी ऑफ यू ऑलरेडी नो दिस. तो इसको एक दफा देख लेते हैं प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर भी कि हमारे पास एक्स टेस्ट में क्या मौजूद है. प्रिंट एक्स टेस्ट. Alright, so these are the values we are having as age. अगर आपको मालूम हो तो हमारे पास x कॉलम में age था और हमारे पास y कॉलम के अंदर परफॉर्मेंस ऑफ ड्रग थी. तो अकॉर्डिंग टू दीज कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमारे पास जो है मॉडल प्रिडिक्ट करके बता रहा है कि किस एज पे दवाई ने कितना ज़्यादा असर किया है. नाउ देयर कैन बी सम सॉर्ट ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स एज वेल. इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इसमें एब्सोल्युटली हमारे पास एरर्स भी होंगे. 100% मॉडल कभी भी एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन हम इससे ये पता लगा रहे हैं कि मॉडल किस वैल्यू पे क्या प्रिडिक्शन दे रहा है. अब फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हो 876 की तो वो वैल्यू 72 पे दे रहा है कि 72 पे 876 हमारे पास जो है रिग्रेशन मॉडल ने ट्रेन हुआ है और प्रिडिक्ट होने के बाद वो हमें 876 वैल्यूज दे रहा है. आई होप दिस इट मेक्स सम सेंस. और ऐसी बात नहीं कि इसमें रेजिडुअल्स नहीं होंगे, रेजिडुअल्स बिल्कुल होंगे, लेकिन वैल्यूज हमारे पास इतनी सारी हैं कि हम उसको देख नहीं पा रहे कि रेजिडुअल हो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई स्पेसिफिक आउटलायर्स मौजूद नहीं है. एनी फर्दर क्वेश्चंस? ऑलराइट. I'm not understanding this question. Can you please elaborate it further? पॉलीडॉट फिट में कब एक्स ट्रेन वाई ट्रेन या एक्स पॉली और ओके 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 मैं समझ गया हूँ, बता देता हूँ. ओके, पहली बात ये कि एक्स डेटा सेट कहाँ से मिल रहा है. सो इफ़ यू नो इट, जब हम अपने डेटा को स्प्लिट करते हैं, अगर आपने कल की वर्कशॉप अटेंड की हो, समटाइम्स आई टॉन्ट स्टूडेंट्स सो नेवर माइंड प्लीज. आई वेयर दिस इज हैक इज दिस. ऑलराइट, सो एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट. जब हम डाटा को रिटर्न कर रहे होते हैं अपने जब ये ट्रेन टेस्ट प्लेट हम लोग जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने एक्स और वाई डाटा पे, तो ये अपने डाटा को रैंडमली डिवाइड करके एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट ऐसा ट्यूपल ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है. हमारे पास 80% रैंडम डाटा एक्स में चला जाएगा और 20% रैंडम एक्स डाटा एक्स टेस्ट में चला जाएगा जो बच जाएगा. देन उस सेम कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो एक्स टेस्ट में जाती हैं उसी की वाई वैल्यूज यहाँ पर आ रही होंगी और उसी एक्स टेस्ट की वाई वैल्यूज यहाँ पे आ रही होंगी. तो हम इसको ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस डेटा सेट को हम टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें ये मालूम हो जाता है कि भाई मॉडल हमारा कितना अच्छा परफॉर्म हुआ है. मॉडल ने क्या सब चीज़ें याद तो नहीं कर ली टू मेक इट जनरलाइज, हम इसको ब्रेक कर रहे होते हैं. ऑल राइट, एनी फर्दर क्वेश्चन? ओके, ये क्वेश्चन था. ऑल राइट, ओके ओके ओके. पॉली डॉट फिट में कब एक्स ट्रेन और कब कब एक्स पॉली और कब वाई ट्रेन लगाना है? पॉली फिट में कभी भी एक्स ट्रेन नहीं लगाना. पॉली फिट डॉट फिट में हमेशा एक्स पॉली ही लगाना है. एक्स पॉली को हमने पॉली डॉट फिट में ही पास करने के लिए परफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्म किया अपने डाटा को, ताकि उसके पॉलिनोमियल फीचर्स लीनियर डाटा बनते हुए भी अपने खासियत रख दें, वो प्री प्रोसेस हो जाए कि हमारा मॉडल उसको अंडरस्टैंड कर सके. तो इसलिए हम उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं. Same for here and same for model.fit as well. Any further questions? All right, getting some test value and model predictive value. I don't have any access here, brother. Please give me access, or we can have some call personally at Discord.
If someone is having question regarding polynomial regression, so can let me know, so I can end this. Yeah, is it okay to import everything from library instead of one? उससे होगा ये, उससे होता कुछ नहीं है, उससे बस आपका थोड़ा साइज बढ़ जाता है आपकी पाइथन फाइल का जब आप उसको सेव करके प्रोडक्शन में डाल रहे होते हैं. दैट इज व्हाई वी इंपोर्ट जस्ट फ्यू वैल्यू, फ्यू फंक्शन जो कि हमारी नीड होते हैं, क्योंकि हर फंक्शन, ईच फंक्शन केम विद सम लाइन ऑफ कोड एंड मे बी सम अनदर फंक्शन विल बी कमिंग विद मोर फंक्शंस. तो इससे हमारी प्रोग्राम की परफॉर्मेंस में हल्का सा फर्क आता है जब हम एक प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं, लेकिन जब ये प्रोग्राम प्रोडक्शन में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है परफॉर्मेंस में फर्क आ जाता है या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है. सो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता. आप सिंपली पूरा का पूरा sklearn इंपोर्ट कर दें तो वही पूरी की पूरी मेरे ख्याल से 50 MB का है, जितने का भी है पूरा का पूरा आ जाएगा आपकी पाइथन फाइल के अंदर. ऑलराइट, एनी फर्दर क्वेश्चन? I'll be waiting till up to 2 to 3 minutes more because I am having my call with some Googlers. मैं बहुत important call मिस करके आज आप लोगों को पढ़ाने आया हूँ, और वो बहुत important call थी, important call regarding that what should we, how should we teach you guys. So we have to, I have to get back to some Googlers after this workshop. Any confusion? If you guys are having any sort of confusion, please ask me. अदरवाइज आई हैव टू एंड दिस बिकॉज फिर बहुत लंबी हो जाएगी वर्कशॉप, और फिर रेंडरिंग करके यूट्यूब पे आज मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द इसको यूट्यूब पे डलवा दूँ. 2 दिन से इंटरनेट के बहुत इश्यूज थे, इसकी वजह से डाउनलोडिंग बहुत देर में हो रही थी और अपलोडिंग बहुत देर में हो रही थी, तो इंटरनेट की वजह से यूट्यूब पे बहुत देर से आ रहा था. और अब इस दफ़ा मैं थोड़ा देख के करूँगा वीडियो को, जितने भी खाली खाली गैप्स होंगे और जितनी फालतू बातें होंगी उनको कट कर दूँगा. So it will make someone else, it will make good for someone else as well. YouTube पे randomly आ रहा तो वो देख के इससे फ़ायदा उठा सके. So guys, if you are having any further questions, please ask me on Discord. I'll be happy to answer it. Otherwise, we can have leave as well. There are so many questions, personal messages as well. I'll answer these when I'm having free time. So don't worry if I have not answered this right now. Right now, if you having any question regarding polynomial regression, please ask. Okay, no sir, everything is clear. So all right, so I'm gonna end this class. Uh, keep happy, keep working, keep coding, make something good for the community. और मैं आते जाते जाते एक बात कहूँगा कि जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है उसको बनाएं, कोड करें, अपनी गिटअप बनाएं, गिटअप पे डालें, उसे शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, डिस्कॉर्ड में शेयर करें. दैट विल मोटिवेट सम अदर पीपल एज वेल. और हम चांस देंगे अपने कुछ स्टूडेंट्स को, क्योंकि हमारा आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा डीप लर्निंग का, जो कि सिर्फ इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए होगा, क्योंकि साथ में हमारे पास कुछ इंडस्ट्री के बंदे भी होंगे जो पढ़ रहे होंगे, और उसमें हमारे पास इंडस्ट्री के बंदे होंगे जो पढ़ा रहे होंगे, जो कि एक्चुअली प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं. तो उनमें हम वेरी फ्यू स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे, और उनके लिए उन लोगों को मशीन लर्निंग आनी चाहिए. सो कीप लर्निंग मशीन लर्निंग, कीप practicing hard in this, so you will shine for our next program inshallah after machine learning. Till that, goodbye, bye bye, Allah Hafiz.